So today we'll continue with the human eye portion, which we were doing in the last of the you know portion of the class in the previous class. So what we'll do is we'll start with the human eye again, जो eye वाला portion है, and then if we get time we'll study the human eye का जो defects है उसको भी पढ़ लेंगे. Otherwise we'll just end up wherever today's class ends. So इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी का. Why? Because we have almost completed everything. सारा चीज हम लोग खत्म कर लिए हैं जो सिलेबस में है. So let's start. So human eye के बारे में हम लोग पिछली क्लास में किए ही थे. I'll just again reiterate all those things which we discussed. शुरू के 2-3 स्लाइड repetitive slides होंगे जो पीछे हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है. आगे के स्लाइड्स फिर आपको नई स्लाइड्स मिलेंगे. तो सबसे जो आउटर मोस्ट पोर्शन है ह्यूमन आई का, दैट इज कॉर्निया. सो which is basically a protective layer which is formed outside on the outside of this eyeball. And then between cornea and eye lens you will find a liquid which is aqueous humor. ये जो दोनों लिक्विड है एक्वस ह्यूमर और ये जो लिक्विड है विट्रस ह्यूमर, इसका यूज क्या होता है? बेसिकली ये रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है. मतलब जो फर्दर मतलब इट हेल्प्स इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम, लेट्स से फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट or from a distant object. So light which is incident on this eye lens, that that is being refracted further using aqueous humor and vitreous humor. Then the region through which light enters our eyes is called pupil. So ये जो portion है, this is called pupil. And the size of the pupil is being controlled by iris. So this is iris. Okay, this black portion which you are seeing. So this size of the pupil is being controlled by iris. So if iris expands, है ना, तो pupil छोटा हो जाएगा. If iris contracts, pupil बड़ा हो जाएगा. So iris अगर contract करेगा, pupil expand करेगा. iris अगर आपका expand करेगा, pupil जो है contract कर जाएगा. So it is just opposite of what iris does. And so iris controls the size of the pupil. And this change in size of iris and hence pupil is a bit slow. So it does not happen instantly, and that's the reason when we come from a dark room inside a come to a dark room from a bright uh, you know from the bright surrounding, then what we find that it becomes difficult for us to see things which are placed inside the room. So it takes some time for our eyes to get adjusted to that particular intensity of light. So that is because the size of the pupil and iris, it takes some time to adjust, and hence allow the amount of light which has to fall inside it. So if the size of the pupil will be bigger, that means more of the light will be allowed to get inside. And so bahar agar andhera hai, let's say uh, the the light inside the room is very less, then in that case the pupil will expand so that it can allow more and more light to enter into the eye and hence see the objects which are around. And if it is very bright outside, let's say जो अगर sunny afternoon में हम लोग बाहर जाते हैं तो वहां पे pupil, the size of the pupil reduces, it becomes very small so that very less amount of light is allowed to fall inside our eye. Now, apart from iris pupil, we have this ciliary muscles. So ciliary muscles, what it does is basically controls the shape of the lens, eye lens. So it changes the shape of the eye lens. So if ciliary muscles are relaxed, then in that case, eye lens are very thin. And if ciliary muscles are expanded, so in that case, the lens is thicker and hence the focal length of it decreases and power increases.
So we'll talk about this more when we are talking, in the further slides. The image which is formed on the eye lens, the behind the eye lens, is basically after the eye lens, the image is being formed on the retina. So it acts as a screen basically on which the image is formed. And because the image which is formed is a real image, so the image will be inverted. So because real में inverted image बनता है, so whatever image which is formed on the retina is inverted. So when that image falls on retina, so what happens is that retina converts those images into electric signals, and those electric signals are being bundled and sent to our brain using optic nerves, and then brain interprets that image, and then that's how we come to know what we are seeing. So this is the whole working of human eye. Yes, Pulkit, बताइए. सर मतलब अगर ब्रेन को इतना ज्यादा ऐसे पता चल जाता है कि इन्वर्टेड ऐसे सीधा करना है, तो सर अगर हम ऑलरेडी कुछ इन्वर्टेड देखेंगे तो वो खुद इन्वर्ट होकर सीधा हो जाएगा. तो नहीं, सर ये इन्वर्टेड देखेंगे तो ब्रेन बताएगा कि हम इन्वर्टेड देख रहे ओके सर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो स्क्रीन पे सीधी इमेज बनाएगा, हैं. तो ये ब्रेन पता क्यों नहीं लगा लेता कि मतलब ये सीधी. इन्वर्टेड को सीधी करता है. अगर सीधी बन रही होगी तो उसको फिर इन्वर्ट कर देगा ना, जस्ट ऑपोजिट कर देता है. ओके सर. यस आथिया. Sir, does the color of iris affect the contraction of it? Does the color of iris affect its contraction? Yeah, थोड़ा सा चेंज करता है. Iris changes, its color. Today only I was, finding certain slides for you, so that आगे हम लोग देखेंगे भी. तो वहाँ पे I read कि the color of the iris changes and these things. These are pure biology topic. तो मेरे ख्याल से गौतम sir would be the right person to answer these. I am not a biology person ज़्यादा. तो ठीक है, मतलब चेंज होता है. That's what I read it today, that it changes a bit. Okay. और आजकल तो वो लेंस वगैरह भी आता है ना, उसमें भी आइरिस के कलर्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो बेसिकली, राइट? यस सर. यस कॉन्टैक्ट. सर. वो हाँ, कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं. तो आइरिस के कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो. ऐसे जब एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है तो देयर इज अ कलर चेंज व्हिच हैपेंस. I did not get into details of that, so you can just look into Google and you will find many things there. ठीक है बेटा? Thank you, sir. Okay. So the human eye is like a camera, as we discussed. So basically camera जिस तरीके से image अपने screen पे बनाता है ना. पहले तो कैमराज में पीछे रील्स हुआ करते थे जिसपे कि इमेज बनते थे. आज के समय अब तो वहाँ पे एक स्क्रीन होता है जो कि हम लोग LCD स्क्रीन पे देख भी सकते हैं क्या इमेज फॉर्म हो रहा है. So the eyeball is approximate spherical in shape with a diameter of about 2.3 centimeter. Its lens system forms an image on the light sensitive screen called retina. So ये जो पूरा retina है यहाँ पे image बनता है. Light enters the eye through a thin membrane at the front part called cornea. So this is the cornea, thin membrane on the front part. Okay. Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil. So iris, this is iris basically, which controls the size of the pupil. Yeah. Okay. Now, pupil is hole in the middle of the iris. It regulates and controls the amount of light entering the eye. So pupil controls the amount of light entering the eye. So if the size of the iris changes, right? So iris changes its size. So जैसे जैसे iris अपना size change करेगा, pupil will accordingly change. So pupil appears black because there is no light, because no light is reflected from it. So all the light is getting absorbed here. All the lights passes through it, and that's why pupil is black. The adjustment of the size of the pupil takes some time, and that's why when we come all of a sudden from bright sunny surrounding outside to a dark room, it takes some time for our eyes to
get habituated and see the things which are around. The eye lens is a convex lens made of transparent, soft and flexible material like jelly made of protein which can change shape. तो ये जो eye lens है, ये it can change shape. Why? Because it is made up of a jelly-like substance, protein made of protein, so that when the ciliary muscle stretches it or relaxes, it changes the shape of the lens, and hence we can see objects which are nearer to us as well as objects which are far to us. हाँ पुलकित बोलो. सर जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि आयरिस इज अ डार्क मस्कुलर, तो सर डार्क है तो सर जैसे कई बार होता है ना कि मतलब बर्थ से ही आयरिस का कलर थोड़ा लाइट होता है, तो उससे कुछ इफेक्ट करता है? नहीं, आइरिस का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है ना देखने के लिए. आइरिस तो एक शटर के तरह काम करता है. अब शटर तुम ग्रे कलर का यूज करो चाहे ब्लैक कलर का यूज करो, क्या फर्क पड़ता है? ओके सर. जस्ट लाइक अ मतलब उसका कोई काम नहीं होता. भाई होता होगा, मैं ऐसे नहीं कमेंट कर सकता. होता होगा कुछ समझ. ओके सर. बेसिकली हाँ, इमेज बनने में कोई काम नहीं होता है. तो इसीलिए इमेज जो बनेगा आइरिस के कलर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा इमेज का बनने का. काम तो एक ये है कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, और कोई काम अलग स्पेसिफिक काम आई डोंट नो कि ऐसा कोई काम होता है. यस सर. तो बेसिकली इमेज तो देखो, जो प्यूपिल से लाइट जाएगा आई लेंस के थ्रू और रेटिना पे इमेज बनेगा, तो इमेज तो उस प्रोसेस से बनता है ना. तो अब जब आइरिस का कोई रोल ही नहीं है इमेज बनाने में, तो फिर कैसा इमेज दिखेगा, उससे आइरिस के कलर से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. यस सर. So the eye lens is held in place by ciliary muscles. So you can see here. तो ये हमारे ciliary muscles हैं. ठीक है, if you can see, this is the ciliary muscles, right? This one. So iris is held in place by ciliary muscles. The focal length of the eye lens is changed by changing its shape by the action of ciliary muscles. तो जब ciliary muscles contract करेगा, right? तो उस केस में you will see that ciliary muscles जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे ये थिकर हो जाता है. सीलियरी मसल्स रिलैक्स करेगा तो उस केस में ये थिन हो जाता है. ठीक है. सो द सीलियरी मसल्स डिसाइड्स द शेप ऑफ दिस लेंस एंड हेंस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि जो रियल इमेज है तो इन्वर्टेड ही होगा. तो इन्वर्टेड रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. रेटिना हैज लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स. तो रॉड्स क्या करता है? इट रेस्पॉन्ड्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कोन्स रेस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. So rods and cones are two different kind of cells which are present in retina. रेटिना में दो तरीके के सेल्स होते हैं. एक रॉड के शेप का होता है, एक कोन के शेप का होता है. जो रॉड के शेप का होता है वो इंटेंसिटी पे रेस्पॉन्ड करता है कि ब्राइट लाइट है या डार्क लाइट है, तो वो रॉड्स बताएगा आपको. और कोन्स क्या बताएगा? किस कलर का लाइट है, वो कोन्स बताता है. So the space between eye lens and the cornea is filled with a viscous liquid called aqueous humor, and the space between eye lens and retina is filled with another liquid called vitreous humor. A small region of the retina where the optic nerves enter the eyeball is insensitive to light and is called the blind spot. तो वो जो हम लोग बात कर रहे थे, रेटिना था और यहाँ पर से जो बंडल ऑफ नर्व्स निकल रहा था, तो ये जो पोर्शन था, दिस इज बेसिकली द ब्लाइंड स्पॉट. ओके सर तो ऐसे मतलब अगर इसमें कोई लाइट रे मतलब वो लाइट का अगर इसमें कुछ इमेज का वो जो लाइन रे आती है वो अगर इस पे वो करेगी इंसिडेंट, तो सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ना. वो वही तो कह रहा है ना कि लाइट पे इनसेंसिटिव है. लाइट के लिए इनसेंसिटिव है मतलब यहाँ पे लाइट फॉल करे चाहे नहीं फॉल करे, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इमेज आपका बनेगा नहीं. तो इस पोर्शन में कोई इमेज नहीं बनता है. सर ऐसा कभी होता है मतलब कि ऐसे मतलब इमेज ही ना बने ऐसे? नहीं, इस रीजन में नहीं बनेगा ना इमेज, तो बाकी रीजन में बनेगा ही. ठीक है. तो इस रीजन को रीड ही नहीं करेगा ना तुम्हारा ऑप्टिक नर्व जो यहाँ. ठीक है. Sir, यस.
color blindness caused due to a defect in cone cells? I suppose yes, because color of the object is being found by is being judged by these cones only. So color blindness would be because of these cones would not be in a proper shape or not in a proper arrangement, then color blindness would be there. तो कभी वो कलर रेड की जगह कोई और कलर दिखेगा या कोई और कलर दिखेगा. दिस इज बिकॉज ऑफ सम डिसअरेंजमेंट इन कोन्स. So if you see this working of the eye, so what happens is the pupil regulates and controls the amount of light entering the eye. Okay, eye lens forms an inverted image of the object. So you can see एक बच्चे का फोटो यहाँ पे inverted image यहाँ पे रेटिना पे बन रहा है ना, inverted बन रहा है यहाँ पे, और उसको ब्रेन फिर से वापस सीधा कर दे रहा है. So हाँ, सर अगर ऐसे में इस बच्चे को उल्टा रख दें तो सर सीधी इमेज नहीं बन जाएगी? कैसे सीधी इमेज बन जाएगी? सीधी इमेज तो रेटिना पे बनेगी, ब्रेन तो उसको फिर से उल्टा ही कर देगा ना. तो सर मतलब ब्रेन को ऐसे मतलब फंक्शन सा कर रखे है उसे बस हाँ, जो बस वो से इन्वर्ट कर देना दोबारा. बस इन्वर्ट कर देना, उस जो रेटिना पे बनेगा उसको इन्वर्ट कर देना. So pupil regulates and controls the amount of light entering the eye. The eye lens forms an inverted real image of the object on the retina. The retina is a delicate membrane having enormous number of light cells, light sensitive cells. These cells get activated upon illumination and generate electric signals. So these signals are sent to the brain via optic nerves. The brain interprets these signals and finally processes the information so that we perceive objects as they are. ठीक है, वापस उसको सीधा कर देगा जिससे we perceive it as they are. Clear बच्चों? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. So you can see the function of iris and pupil basically. So the iris regulates the amount of light entering the eye by adjusting the size of the pupil. So the region which you are seeing, ये जो black वाला जो spot है उसके आसपास का जो region है, that is iris basically. ठीक है? So if the intensity of the outside light is low, then the pupil expands to allow more light to enter the eye. तो pupil expand करेगा, जो previous वाला case है. ठीक है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट वाले इमेज को देखो एक्सपैंड किया हुआ है यहाँ पे. ऑन द अदर हैंड, इफ आउटसाइड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज हाई, द प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स सो दैट लाइट लेस लाइट एंटर्स द आई. द एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्यूपिल टेक्स सम टाइम. सो दिस इज व्हाई वी कैन नॉट सी प्रॉपरली व्हेन वी कम फ्रॉम ब्राइट सनलाइट आउटसाइड टू अ डार्क रूम. क्लियर है बच्चों? Yes Yes, sir. तो ये बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारा, सो दिस इज द पोर्शन विच इज एक्चुअली दिस इज आइरिस. ओके, एंड ये जो पोर्शन है दिस इज प्यूपिल. सो आइरिस जब एक्सपैंड करेगा तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. आइरिस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्यूपिल एक्सपैंड करता है. जब बाहर लाइट ज्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो प्यूपिल बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और आइरिस एक्सपैंड कर जाएगा, so that less amount of light enters our eyes. और बाहर अगर रोशनी कम है, मतलब अंधेरा है, तो उस समय प्यूपिल एक्सपैंड कर जाएगा और आइरिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes sir. Now, how do we see colors? The cells on the, so these are the questions you will find, which is quite often asked. So the cells on the retina are of two types, rod shaped and cone shaped. Okay, so there are two types of cells. One is rod shaped and the other is cone shaped. So you can see these are rod shaped cells. So this is rod, this is rod, this is a cone shaped cell, right? This is a cone shaped cell. So ये जो cone shaped cells हैं, ये colors distinguish करेगा. Rod shaped cells हैं जो intensity of light को बताएगा. So the cells on the retina are of two types, rod shaped and cone shaped. Rod shaped cells of our retina respond to the intensity of light, that is the brightness of light. And the cone shaped cells of our retina responds to colors.
So here you can see this is the pupil, this is iris, this is the eye lens. आरपी क्या है? अब ये सब बायोलॉजी का टर्म है, रहने दो, क्या है उससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग को बस रॉड्स और कोन्स पढ़ना है। सर वैसे हम फिजिक्स में इतना क्यों पढ़ रहे हैं आई का ऐसा? पढ़ना था क्योंकि हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ आईज वगैरह पढ़ते हैं, उसको करेक्ट कैसे करते हैं वो तो लेंस ही लगाएंगे ना, लेंस का जहाँ बात आ गया मतलब वो फिजिक्स आ गया, तो इसीलिए बस उतना ही पढ़ना है जितना कि फिजिक्स के लिए जरूरत है। ओके ये सर। सब तुम लोग 11th-12th में जो बच्चे बायोलॉजी लेते होंगे या फिर डॉक्टर वॉक्टर बनने के लिए जो लेते होंगे वो सब, मुझे तो ये इमेज अच्छा दिखा तो, और ये बेसिकली ये इस वाले पोर्शन जो रेटिना का जो पोर्शन है ना उसका एक्सपेंडेड फॉर्मेट है, बेसिकली सेक्शन ऑफ रेटिना, रेटिना है, रेटिना का एक पोर्शन का ये अंदर का इमेज, ठीक है। ओके सर। So power of accommodation, so an eye can focus the image of the distant object as well as nearby object on its retina by changing the focal length of its lens. तो बेसिकली होता क्या है, जो दूर का ऑब्जेक्ट और पास का ऑब्जेक्ट दोनों का इमेज जो है वो आपको हमेशा रेटिना पे ही बनना है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज at infinity or the object is at 25 centimeter, in both the cases you will find the image being found at the retina. तो मतलब मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जो हमारा आई लेंस से रेटिना का जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स्ड है ना, वो तो चेंज नहीं कर रहा है, मतलब इमेज डिस्टेंस फिक्स्ड है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज कर रहा है, राइट। द इमेज डिस्टेंस इज फिक्स्ड एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज चेंजिंग, राइट। सो इफ यू कैन सी, दूर पे रहे चाहे पास पे रहे, इमेज तो यहीं पे बनेगा रेटिना पे, तो इमेज डिस्टेंस फिक्स्ड है और यू चेंज कर रहा है। हमारे पास जो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। अब यहाँ पे v फिक्स्ड है तो, और u चेंज कर रहा है, u चेंज कर रहा है तो f को भी चेंज करना पड़ेगा। f को चेंज करने के लिए ही हम लोग इसको, फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए इसके लेंस के शेप को चेंज करते हैं। लेंस के शेप को कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारा जो यहाँ पे सीलियरी मसल्स है, इस सीलियरी मसल्स क्या करेगा, लेंस को स्ट्रेच करेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेंस को स्ट्रेच जब करेगा तो उस समय लेंस पतला हो जाएगा, है ना। लेंस पतला हो जाएगा तो दूर के चीज को देखने के लिए हमें इट इज प्रॉपर, और अगर पास की चीज देखनी है तो लेंस बिल्कुल थिक हो जाएगा, तो उस समय जो हमारा सीलियरी मसल्स है वो बिल्कुल स्ट्रेच कर जाता है। सीलियरी मसल जब स्ट्रेच करेगा तो उस समय हमारा लेंस जो है थिकर हो जाएगा। सीलियरी मसल जब रिलैक्स करेगा तो हमारा लेंस पतला हो जाएगा, थिनर हो जाएगा। सो देखो, an eye can focus the image of the distant object as well as nearby object on its retina by changing the focal length of its lens. When the eye is looking at a distant object at infinity, the ciliary muscles of the eye are fully relaxed. मतलब कि ciliary muscles relax का मतलब ये बिल्कुल, है ना, स्मॉल साइज का हो जाता है, ठीक। तो उस केस में लेंस विल बी थिनर, ठीक है। So eye lens is very thin and less convex in this position. Since the eye lens is very thin, its focal length is maximum in this position. So it can converge the parallel rays of light coming from the distant object to form the image of the distant object at the retina. ठीक। अब next case में, when the eye is looking at a distant object, the eye is said to be unaccommodated because it is in relaxed state. देखो, हमारा जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है उस समय हमारा जो सीलियरी मसल्स है वो रिलैक्स स्टेट में है और आई लेंस बिल्कुल पतला है, तो दैट इज अनअकोमोडेटेड स्टेट। When the eye has to see nearby object, the ciliary muscles get stretched. सीलियरी मसल्स जो पहले रिलैक्स थे और ये जो लेंस पतला सा था, अब सीलियरी मसल जब स्ट्रेच कर जाएगा तो उस समय लेंस जो है ऐसे थिकर हो जाएगा। लेंस थिकर हो जाएगा, ये कब थिक होता है, जब जो नियर बाय ऑब्जेक्ट को आपको इमेज बनाना है,
रेटिना पे। तो उस केस में ड्यू टू शॉर्ट फोकल लेंथ द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज एंड इट कैन फोकस द डाइवर्जिंग रेज कमिंग फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। सो बेसिकली जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इसके लाइट रेज क्या है, वो इस तरीके से ऐसे निकल के इधर जा रही होंगी। इसको यहाँ पे रेटिना पे इमेज बनाना है, तो इसको पूरे लाइट रेज जो इधर जा रही है उसको कन्वर्ज करके इधर इधर मोड़ना होगा उसको। तो बिकॉज अब यहाँ पे एंगल जो डेविएशन है वो ज्यादा डेविएट करना पड़ेगा लाइट को, तो दैट मीन्स यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो कम होना चाहिए और पावर ज्यादा होना चाहिए। तो इसी वजह से फोकल लेंथ जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो फोकल लेंथ हमारा लेस हो जाता है और पावर इंक्रीज हो जाता है। सो ऐसे केस में इसको हम लोग एकोमोडेटेड स्टेट कहते हैं। जब थिनर था उसको अनएकोमोडेटेड स्टेट कहते हैं आई लेंस का, रिलैक्स स्टेट, और जब थिकर है तो उसको एकोमोडेटेड स्टेट कहते हैं। सो व्हेन द आई लेंस बिकम मोर कन्वेक्स टू फोकस द नियर बाय ऑब्जेक्ट द आई इज सेड टू बी एकोमोडेटेड। ठीक है, the ability of an eye to focus the distant object as well as nearby objects on the retina by changing the focal length of its lens is called accommodation. तो ये power of accommodation होता है। power of accommodation क्या है, जब हम nearby object को भी lens पे देख सकें, retina पे देख सकें, और distant object का भी image retina पे बना पाए। So when you can form image of nearby object as well as distant object on the retina itself, this is known as power of accommodation. Okay, this phenomena is known as accommodation. Okay, so accommodation is basically formation of image of nearby as well as distant object on the same screen, that is retina. So image distance is same, the object distance changes, and hence the focal length of the eye lens changes by changing its shape, and that shape is being changed by ciliary muscles. Ciliary muscles, when it is relaxed, the lens is thinner and the focal length is more and the power is less. And when the ciliary muscles is stretched, in that case when the ciliary muscles is stretched, in that case the lens is thicker, focal length is less, and the power is more. Okay. किसी को कुछ पूछना है इसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन में? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो इफ यू सी दिस, यहाँ पे जैसे सीलियरी मसल्स है ना, स्ट्रेच करना है इसको बोलेंगे ना, सो सीलियरी मसल्स है बेसिकली। ये जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स करेगा, राइट, सो व्हेन द सीलियरी मसल्स रिलैक्सेस, इन दैट केस द लेंस इज थिनर। तो यहाँ पे तुम, दिस इज thinner, and when ciliary muscles is stretched, in that case the lens is thicker. You will find a thicker lens. Okay, so इसको unaccommodated state कहते हैं। unaccommodated मतलब जब वो distant object को देखना है, जब उसको बहुत ज्यादा अपने आई को स्ट्रेस में नहीं डाल रहे हैं, और जब पास की चीज देखते हैं तो उस समय आई जो है ज्यादा स्ट्रेस्ड रहता है। यही वजह है कि जब हम लोग पास से ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह देख रहे होते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि थोड़ी दूर से देखो, डोंट गेट नियरर टू इट, है ना। सो यही रीजन है, उस समय जितना पास से देखेंगे उतना ज्यादा हमारा ये जो है ये दिस विल बी इन द मोर ऑफ एकोमोडेटेड स्टेट। और सीलियरी मसल्स बार बार तुम क्या है उसको स्ट्रेच करोगे और रिलैक्स करोगे तो what happens is this becomes weaker, और इसका इलास्टिसिटी कम हो जाता है, जिसके वजह से जो है
इवन दो आप जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हो तो उस समय भी ये स्ट्रेस्ड ही रहता है, तो आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर तक ठीक से नहीं दिखता है, तो मायोपिक हो जाते हो आप बेसिकली। जो हम लोग जब आई के डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें तुम देखो कि वो रीजन है इसका, ठीक है। और दिस इज व्हाट हैपेंस यू नो इन ओल्ड एज। इन ओल्ड एज ऑल्सो व्हाट हैपेंस कि ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है ये वीक हो जाता है, बिकॉज ये जो इलास्टिसिटी है इन मसल्स का दैट बिकम्स वीकर। So normal eye has a power of accommodation which enables object as far as infinity and as close as 25 centimeter to be focused on the retina. So जो power of accommodation है हम लोग infinity तक देख सकते हैं। infinity मतलब जहाँ तक नजर जा रही है उसको infinity बोल रहे हैं। मैंने पढ़ा था 3 माइल्स होता है, I think। हाँ मतलब उसको तो कोई मेजर नहीं किया infinity तक, मतलब जहाँ तक आप देख पा रहे हो तो Yes। उसको infinity बोल देते हैं। So बेसिकली जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, नियर बाय 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर के पास जब कोई चीज लेके आओगे तो आपको ब्लर्ड दिखेगा, आपको मतलब प्रॉपर उसका जो शार्पनेस इमेज का है वो कम हो जाता है, ठीक है। So minimum distance at which an object must be placed so that normal eye may see it clearly without any strain is called least distance of distinct vision. तो जो least distance of distinct vision है that is equal to 25 centimeter. Okay. So least distance of distinct vision is 25 centimeter. So उससे पास अगर लाएंगे तो दिखेगा। बच्चे बोलते हैं कि सर पास भी मुझे दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप स्ट्रेस कर रहे हो, बेसिकली स्ट्रेन कर रहे हो अपने आईज को जब आप देख रहे हो उसको, और वो भी आपको बहुत क्लियरली नहीं दिखता है, वो थोड़ा हेजी ही दिखता है। Okay, the light and the least distance of distinct vision for normal eye 25 centimeter. Farthest point from the eye at which an object can be seen clearly is called far point of the eye. तो अगर आपके आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब you don't have any eye defect, in that case the far point of an eye is infinity. But if you have an eye defect, then the far point may be 5 मीटर और 10 मीटर, तो 5 मीटर 10 मीटर तक चीजें ठीक दिखेंगी, उसके बाद फिर धुंधली दिखने लगती हैं। Without glasses। Without glasses, that's why. So then you need to put on glasses so that you can see the far point, farther object as well. The nearest point up to which the eye can see an object clearly without any strain is called near point. So least distance of distinct vision को near point भी कहते हैं नॉर्मल आई के लिए। अगर हमारा आई डिफेक्ट है तो हमारा नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। सो जनरली ओल्ड एज में नियर पॉइंट गोज अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर। तो आपको बेसिकली क्या है कि जनरली आप ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर आपके घर पे हैं, अगर कोई हैं बूढ़े, तो उनको आप देखोगे कि वो जो न्यूज़पेपर है थोड़ा डिस्टेंस पे रख के ऐसे पढ़ते हैं। दैट इज बिकॉज उनका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो उसके लिए फिर वो स्पेक्टिकल्स वगैरह लगाते हैं, ग्लासेस लगाते हैं उसको सही करने के लिए, बट देन उनको आदत ही हो जाती है फिर दूर रख के पढ़ने के लिए, ठीक है। सो सिलेबस में तो इतना ही है तुम्हारे, इसके आगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। है एनी डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, sir. सो व्हाट आई विल डू, जो इसमें क्वेश्चंस हैं पीछे एक बार उसको हम लोग रिविजिट कर लेते हैं, उसको विजिट कर लेते हैं क्वेश्चंस को, है ना, so that you can write the answers properly of those questions. So we'll discuss those questions. What you need to do is write the answers and send it to me properly. Okay? Just give me a moment's time. I'll open that file. Done. ठीक है, okay. Mute your speakers, mics.
I think you have not got the fourth part of the booklet, science का booklet, right? Yes, sir. Yes, sir. चलो So मेरे को क्योंकि थर्ड भी लेना है. भाई जो जिसने नहीं लिया वो तो तुम्हारी गलती है ना, मेरी गलती तो उसमें है नहीं, है ना। तुमको, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं, इतना बिजी हो कि तुम जाके स्टडी मटेरियल तक नहीं ले पा रहे हो, घर पे लाके रखे रहे, उसको वापस हम भेज दिए फिर से सेंटर पे, तो क्या करेंगे? 3 महीने तक मेरे पास पड़ा रहता है, लोग लेने तक नहीं आते हैं, और क्या कर सकते हो? और तो कुछ कर नहीं सकते। होम डिलीवरी वाला सिस्टम तो अभी चालू किया नहीं। हाँ, मैं लेके आ जाऊं तुम्हारे घर पे बालक? नहीं सर, बोलो, तुम आज्ञा तो दो, आज्ञा कहीं सिर्फ मैं ले लूंगा सर. एहसान होगा तुम्हारा। ले लो और पढ़ाई करो, अभी तक तुम्हारे पास थर्ड वाला नहीं है, थर्ड कब का खत्म हो चुका है। चलो, मैं फोर्थ वाला, गिव मी अ वीक्स टाइम, आई विल गेट इट प्रिंटेड एंड विल लेट यू नो वंस इट इज सर प्रिंटेड। कितने मिलने हैं वैसे टोटल? चार ही लास्ट है, बस ही खत्म हो गया तो अब बचा कहाँ? सर बट अभी तो शायद बचा है। क्या बच गया? सर मतलब अभी केमिस्ट्री का तो शायद एक चैप्टर और बचेगा। वो सारा कवर हो जाएगा उसी में, क्यों तुम परेशान हो रहे हो? कौन कौन से चैप्टर्स तुमको मिल गए हैं केमिस्ट्री में? सर फर्स्ट 3। क्यों ये कार्बोनेट्स कंपाउंड नहीं मिला है अभी? नो सर, और फिर उसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी है। दोनों मिल जाएगा तुमको इसी में। ओके सर। और बेसिकली ये फोर्थ बुकलेट में यही 2 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के। फिजिक्स का ह्यूमन आई होता है, और जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो तो हट ही गया है सिलेबस से, तो उसको डालने की जरूरत है नहीं। और बायो में मेरे ख्याल से हेरिडिटी और यस सर, हेरिडिटी। एवोल्यूशन वाला तो पोर्शन ऐसे भी हट ही गया है। नहीं सर है, नहीं, एवोल्यूशन वाला कुछ कुछ पोर्शन तो हटा। एवोल्यूशन सर हट गया बट हेरिडिटी तो है। मैं एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ ना, एवोल्यूशन वाला पोर्शन हट गया है। यस सर। हेरिडिटी वाला पोर्शन तो थोड़ा सा ही है, जहाँ पे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट खत्म होता है वहीं तक है हेरिडिटी। तो उसके बाद और मेरे ख्याल से तुम्हें वो वाला पोर्शन मिल गया, रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है। यस सर। यस सर। तो बस हेरिडिटी का जो हाफ चैप्टर बचा है जो सिलेबस में है वही पोर्शन चाहिए, और ह्यूमन आई का पोर्शन चाहिए, और केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर्स चाहिए। दैट्स इट, राइट? यस सर। So this will all be done in one of the booklet and will be given to you within a week's time. Okay? और ठीक है। एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ मॉड्यूल जहाँ पे कि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे बहुत बच्चे कहते हैं कि हमें प्रैक्टिस नहीं हो रहा है MCQ बेस्ड क्वेश्चन का, तो वो हम तुमको देंगे उससे प्रैक्टिस करने के लिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? ओके सर। चलिए अब इसको करते हैं। पहले व्हाट इज द रोल ऑफ रेटिना, एक एक करके जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा, ठीक है? So, सबसे पहले कौन जवाब देगा मैं पूछूंगा। आरित, पुलकित, तुमको जवाब नहीं देना है, तुमसे मैं बाद में पूछूंगा। ओके सर। आरित, Yes, sir. व्हाट इज द रोल ऑफ रेटिना? कोई भी अपनी लैंग्वेज में बताओ, असली चीज बताने का जरूरत नहीं है, मतलब एग्जैक्ट बुक का बताने के लिए। बोलो बोलो। Sir, to form an image. हाँ, so role of retina is it acts as a screen where the image is formed after it has been refracted from the eye lens. Okay? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब name the cell that responds to intensity of light. आरुषि। जिनका माइक नहीं काम कर रहा, they can also write it on chat. बताओ बच्चों। सर मैं बता। सर मैं बताऊं? राघव बताओ।
हाँ सर, तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, जिनको हम फोटो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। अच्छा, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कौन, नेम द सेल दैट रेस्पॉन्ड्स टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, उनमें से कौन है? रॉड्स क्या करता है, कोन क्या करता एक सेकंड याद करने दो, इन दोनों नाम याद थे, बाकी याद नहीं है। एक सेकंड। रॉड्स इंटेंसिटी Rods. रॉड्स ये करता है, और जो कलर परसेप्शन है वो कोन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर परसेप्शन, दैट इज कोन्स। ठीक है। Those who have raised their hands, I'll ask you the next question, so don't worry. Okay जी, चलिए, बहुत लोग आंसर्स टाइप भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आप लोग चैट पे टाइप भी करके मुझे बताते जा सकते, तो मैं देख लूंगा कि आप लोग सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिफ्थ पे। व्हाट इज एकोमोडेशन, कौन बताएगा? फोर्थ रह गया, फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। हाँ सॉरी, मेन फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स हम लोग को कौन, जयवर्धन बताएगा। जयवर्धन बताओ, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स? जयवर्धन सर मैं बताऊं? बताओ, अक्षत तुम ही बताओ। सर ये क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करता है फ्लूइड, और उस फ्लूइड का नाम है एक्वस ह्यूमर, इन आई के अंदर प्रोड्यूस करता है। सिलियरी मसल्स, हाँ, ये कहाँ पढ़ा तुमने? बुक में, लक्ष्मी सिंह की तरफ से। नहीं, सिलियरी मसल्स तो शेप ऑफ लेंस को चेंज करता है। सिलियरी मसल्स चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस, जिसके वजह से एकोमोडेशन होता है, मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट दोनों का इमेज वहां पे रेटिना पे बनता है। कुछ और पढ़ लिया होगा, देख लूंगा एक बार। पता नहीं, एक्वस ह्यूमर तो प्रोड्यूस नहीं करता मुझे जहां तक याद है। मैंने भी पढ़ा था बहुत पहले लखमीर सिंह, बट मुझे याद नहीं है। खैर एनीवेज, मतलब जो मेन फंक्शन जो उसका है ना सिलियरी मसल का, वो लेंस के शेप को चेंज करता है। सर Yes, गूगल पे Mahika, you are right, and Pulkit, you have also written a correct answer. Vedans ने भी correct answer लिखा है। तो ciliary muscles basically it changes the shape of the eye lens, and उसके हिसाब से नियर बाय और फार ऑब्जेक्ट दोनों को हम लोग रेटिना पे बना सकते हैं उसका इमेज। ठीक है, अच्छा, क्या चीज, वो जो सिलियरी मसल्स जो एक्वस ह्यूमर बनाता है, गूगल पे लिखा है, होता होगा मेन फंक्शन। सर वो वैसे गूगल पे लाइक ऐसे फुल एकदम नहीं है कि वही बनाते हैं, बट उसके अराउंड एक दो चीजें और टर्म्स यूज की हैं। अच्छा, हाँ, कोई तो बात नहीं, मतलब बनाता होगा। हम लोग को तो मेन फंक्शन जानना है। सिलियरी मसल्स का मेन फंक्शन लेंस के शेप को चेंज करने के लिए होता है। सर मैंने भी अभी चेक किया, उस पर दिखा हुआ है जो मैंने बताया सर। होगा होगा बेटा, बट मेन फंक्शन के बारे में बात करते हैं। वो हम लोग बायोलॉजी वाला ओके सर। 11th-12th के कहाँ पहुंचेंगे वहाँ, और बहुत सारा चीज ओके सर। गूगल पे सही नहीं भी रहता है, तो इसीलिए हमेशा ये ट्रस्ट भी मत किया करो गूगल को। मतलब हम कोई चीज का आंसर, मान लो ब्रेनली में किसी ने पूछा, मैंने गलत आंसर कर दिया, तो गूगल तो सर्च करके वो बता ही देगा ब्रेनली में वो आंसर है, कहीं पे भी। समझ रहे हो ना? तो यू नीड टू फाइंड इट आउट द एग्जैक्ट सोर्स। Ciliary muscles generally changes the shape of the eyelids. चलिए, what is accommodation? Yes, Athya, please. The ability of the eye to change the focal length to focus on a faraway or a near object. Yes, very good. Very good. Very nice answer. Arushi, you have also written a very nice answer. And Vedans and Noyonika. भाई साहब, आप लोग इतना जल्दी टाइप कैसे कर लेते हो? जबरदस्त। हमने पहले टाइप करके रखा हुआ था, बस सेंड कर देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जब तक Yes, sir. तो तुम अगला क्वेश्चन टाइप करके रखे रहते हो। भाई साहब, उंगलियों में तेजी आ गई है तुम्हारे, बहुत बढ़िया है। लगता है, अब हमको लगता है अगला जो है, अच्छा एक दिन हम वो करेंगे कि कौन कितने सही आंसर करता है, और उसके बाद फिर से एक दिन वो चॉकलेट वाला से सेरेमनी किया जाएगा। चलो, अब आगे तो 3-4 महीने यही करने। अच्छा चलो, व्हाट इज एकोमोडेशन हो गया।
अब कहते हैं गिव द रोल ऑफ आइरिस. कौन बताएगा? क्रिश, हाँ बताओ. रोल ऑफ आइरिस. Sir, it controls the amount of light that enters the eye by changing the size of the pupil. Very good, very good. So it controls the size of the pupil and hence, you know, It is a dark diaphragm. controls the amount of light which is entering our eye. ठीक है. Regulates the amount of light entering the eye. मनन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. मनन तो एकदम आज एकदम छाया हुआ है. मनन तुम कहाँ गायब रहते हो बालक? तुम्हारा तो आवाज सुने हुए हमको 3-4 साल हो गए लगता है. बोल भी लिया करो कुछ. नहीं मनन भैया. अच्छा, योर माइक डजंट वर्क. तो सही वाला चीज खरीद लो ना. दुनिया भर का चीज खरीदते हो तुम लोग, फालतू चीज सब. एक हेडफोन खरीदो जिसमें माइक लगा हुआ है. नहीं, अब तो इतने दिन हो गए तुम लोग को यूज करते हुए. डिस्काउंट भी चल रहा है उस पे. हाँ, अब तो डिस्काउंट भी चल रहा है. डिस्काउंट भी चल रहा. अब तो हर जगह, कहाँ Amazon से लेके फ्लिपकार्ट पे पता नहीं क्या क्या डिस्काउंट चल रहा है. चलिए, और रोल ऑफ आइरिस हो गया. व्हाट इज प्यूपिल? बहुत सही. सब लोग सही ही जवाब दे रहे हैं. सो प्यूपिल इज बेसिकली द पोर्शन, होल इन द आइरिस, या फिर a portion through which the light enters our eye is pupil. And pupil allows the amount of light which is entering our eye, and it regulates the amount of eye entering our eye. Okay. बहुत बढ़िया. सबने सही आंसर दिया है. आरुषि, पुलकित और राघव एंड आर्शिया. Everyone is given correct answer. चलिए, what is cataract तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, छोड़ दो इसको. प्रेस बायोपिया भी हमें नहीं पढ़ना है. राइट. कंडीशन नीडेड टू टोटल. हाँ, ये तुम कर सकते हो. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो मैंने तुम लोग को बताया था ना. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Yes, sir. राइट द कंडीशन नीडेड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. हमको बताओ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं उसके लिए. When light travels from denser to rarer medium. Yes, very good. First condition is the light has to travel from denser medium to rarer medium. Then the angle of incidence must be greater than the critical angle. Yeah, the angle of incidence should be greater than critical angle of incidence. बहुत बढ़िया. और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? 0. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90. ठीक है, 90 होगा ना. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो 90 डिग्री होगा जब Yes, critical yes. angle of incidence होगा. और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थोड़ा मतलब भूल सा गया. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये था, बट जो भूल से गए हैं उनके लिए थोड़ा ये जो है. एक मिनट. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मान लो लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है. राइट. तो denser to rarer जाएगा, it will bend away from the normal. Let's say this is denser medium and this is rarer medium. Now when light, the angle of incidence become equal to critical angle of incidence. In that case the angle of refraction is 90 degree. The light grazes the surface and goes like this. Now इसके बाद अगर angle of incidence बढ़ाते हैं तो फिर total internal reflection होने लगता है. This surface starts acting as mirror. Right. So conditions needed for total internal reflection: first, the light should go from denser to rarer medium, and
the angle of incidence should be equal to critical angle of incidence. These are the two conditions. So should be greater than the critical angle of incidence. What is critical angle of incidence? So critical angle of incidence is that angle of incidence at which angle of refraction is 90 degree. Okay. So if let's say this is air and let's say this is some denser medium whose refractive index is mu. So mu into sin C, ये जो mu into sin C will be equal to 1 into sin R, that is 90 degree. Sin 91 है. So refractive index, so sin C will be equal to 1 upon mu. So ये जो critical angle of incidence निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, sin C is equal to 1 upon mu. स्नेल्स लॉ है ये. स्नेल्स लॉ में हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, राइट, और उससे हम लोग फिर क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now the next question is, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा लिखोगे. So you have to tell me, state the reason for the following observation recorded from the surface of moon. Sky appears dark. Why does sky appear dark from the surface of the moon? कौन बताएगा? There is no atmosphere. बहुत बढ़िया. There is no atmosphere और इसीलिए the So no sunlight is scattered. no sunlight is because there is no atmosphere, there is nothing, no light which is scattered, and because there is no light which is scattered, and that's why the outer atmosphere looks. Sir, water vapor भी form नहीं होगा इसकी वजह से. हाँ जी बेटा. Sir, water vapor form नहीं होगा. हाँ मतलब कुछ भी नहीं है ना एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर भी नहीं है, गैसेस भी नहीं है, उसके वजह से ना डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं है जहाँ से कि ये बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो सके. Why is rainbow never formed? Total internal reflection cannot occur as there is no atmosphere. Total internal reflection does not occur because there is no atmosphere. Because वहाँ पे water vapor ही मतलब water droplets होगा क्या outer atmosphere में? सर वही तो atmosphere ही नहीं है तो water droplets कहाँ से आ जाएंगे? सर Rainbow is never formed because of that. Okay, second वाला तो आपको करना नहीं है. Why does it take some time to see objects in dim light when you enter the room and bright sunlight outside? So the pupil takes time to to expand, so we can't see the objects clearly. So it takes some time for pupil to adjust its size, expand, and that's why enough light does not enter our eye, and that's why we are not able to see the objects around in dim light when we come from bright sunlight outside. Okay, myopic eye तो आपको करना नहीं है, hypermetropic eye नहीं करना है, short sightedness ये सब नहीं करना है. Why planets do not twinkle? When white light hits a prism surface, why does it split into constituent colors? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो कलर्स में बट जाता है? Dispersion of light. Dispersion of light. And why does this dispersion of light happen? Because optical density of all colors, wavelength of all colors are different. So different colors of light have different wavelength, and because they have different wavelength, the refractive index for that particular color will be different, and hence different colors bend by different amount when it passes through prism, and that's why it splits into constituent colors. yes, Dispersion of light happens. Okay. Why does planet do not twinkle? they are not that far as compared to stars. And उससे क्या होता है? फार नहीं है, फिर उससे क्या होता है? Light related to stars. There are many sources of light which will be seen from there, and because there are
numerous sources of light, so the intensity of light reaching our eye, is constant. It does not change with time, and that's why it does not appear to twinkle. ठीक है? चलो बच्चों, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे. आपको ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं, व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल वाले तक, तो उसमें जो सिलेबस में जितने पोर्शन के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस लिख के आंसर मुझे भेजने हैं आपको. ठीक है सर. ठीक है, यही आपका होमवर्क है. अच्छे से बढ़िया लिखना. सर आप एक पीडीएफ भेजोगे? हाँ बेटा. फिर आप एक पीडीएफ भेज दोगे ना ग्रुप पे? अच्छा, मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा. सॉरी, तुम्हारे पास नहीं होगा ना क्वेश्चन. मैं एक अच्छा सा असाइनमेंट बना के जिसमें 12-15 क्वेश्चंस होंगे वो भेज दूंगा, उसका आंसर लिख के भेज दूंगा. ओके सर. Thank you, sir. बाय सर. Okay, sir. Bye, sir. Share the soft copy of this chapter also, जो हमने पढ़ाया मैंने. ठीक है सर. Thank you, sir. Thank you, sir.